बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी हिस्सा अव्वल व दुअम जमात दहम तालीमी साल दिन 31वां जमात दहम मजमून रियाजी हिस्सा दुअम इकाई ज़ुअरबतुल अज़ला ज़ैली इकाई ज़ुअरबतुल अज़ला की किस्म। ज़ुअरबतुल अज़ला अरबा बोलते हैं चार, ज़िला बोलते हैं अज़ला बोले तो ज़िला की लंबाई। यहाँ पर अगर आपके पास में इस तरह से चार नुकाते रास हैं और अगर इसको मिलाते हैं ये हुआ पहला क़िता, ये दूसरा क़िता, ये तीसरा क़िता और ये चौथा क़िता। चार क़िताते ख़त से बनी हुई बंद शक्ल है ABCD। चार क़िताते ख़त से बनी हुई बंद शक्ल को ज़ुअरबतुल अज़ला कहते हैं। ज़ुअरबतुल अज़ला में नुकाते रास चार होते हैं, ज़िले चार, ज़ाविये चार, वित्र दो। ये देखिए पहला ज़िला, दूसरा ज़िला, तीसरा ज़िला, चौथा ज़िला। पहला ज़ाविया, दूसरा ज़ाविया, तीसरा ज़ाविया, चौथा। यहाँ पर इसको इस तरह से मिलाए तो ये बना एक वित्र, ये बना दो वित्र। तो ये चार ज़िले, चार ज़ाविये, दो वित्र, तो कुल 10 अज्जा होते हैं। कुल अज्जा 10 होते हैं। अब ज़ुअरबतुल अज़ला की किस्में। ज़ुअरबतुल अज़ला की किस्मों में है, पहला है मुतवाज़िउल अज़ला और दूसरा है ज़ूज़न का। पहला ये जो मुतवाज़िउल अज़ला है, मुतवाज़िउल अज़ला की तारीफ़ है जिस ज़ुअरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतवाज़ी हों उसे मुतवाज़िउल अज़ला कहते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है कि मुतवाज़िउल अज़ला यानी अज़ला का मुतवाज़ी होना। अब अज़ला कौन से मुतवाज़ी होंगे? आमने सामने के। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसमें चार ज़िले हैं, चार ज़ावी हैं। यहाँ पर ज़िलों की बात है कि जिस ज़ुअरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतवाज़ी हों, तो यहाँ पर ज़िला AB मुतवाज़ी होगा ज़िला DC के, ज़िला AD मुतवाज़ी होगा ज़िला BC के। एक चीज़ यहाँ पर बताना मैं भूल गई आपको कि ये जो नाम है इसको हम इस तरह से लिखते हैं ABCD। इसको पढ़ते हैं ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD, यानी चार क़िताते ख़त से घिरी हुई बंद शक्ल है। ये इसकी अलामत है ABCD। इसमें चार नुकाते रास हैं। इसको क्या कहते हैं? ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD। तो यहाँ पर देखिए आपके पास में वजाहत में लिखना है कि ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD में ज़िला AB मुतवाज़ी है ज़िला CD के और ज़िला BC मुतवाज़ी है ज़िला AD के। इसलिए ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD एक मुतवाज़िउल अज़ला है।
یہ اس کی تعریف کی وضاحت ہے، اور اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ضربۃ الاضلاع ABCD ایک متوازی الاضلاع ہے۔ اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ متوازی الاضلاع کے مقابل کے ضلع متماثل، یہاں پر متوازی تعریف میں ہے، متماثل کس میں ہے؟ خصوصیت میں ہے، یعنی ضلع AB متماثل ہوگا ضلع CD کے، اور ضلع BC متماثل ہوگا ضلع AD کی، یعنی اس کی لمبائی برابر ہوگی۔ دوسری خصوصیت ہے مقابل کے زاویے بھی متماثل ہوتے ہیں، متوازی الاضلاع کے مقابل کے زاویے متماثل ہوتے ہیں، یعنی زاویہ A کا سامنے کا دیکھیے، A کے مقابل C ہے، B کے مقابل D ہے، تو زاویہ A متماثل ہوگا زاویہ C کے، اور زاویہ B متماثل ہوگا زاویہ D کے۔ تیسری خصوصیت ہے وتر ایک دوسرے کی تنصیف کرتے ہیں، اس کو اگر ہم نقطہ E نام دیے تو یہ AE اور EC متماثل ہوگا، BE اور ED متماثل ہوگا، AE متماثل ہوگا EC کے، اور BE متماثل ہوگا ED کے۔ یہ سب آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے مستطیل یا قائمۃ الزاویہ ضربۃ الاضلاع۔ اب مستطیل یا قائمۃ الزاویہ ضربۃ الاضلاع، یہ دیکھیے اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں قائمۃ الزاویہ ضربۃ الاضلاع، یعنی ایسا ضربۃ الاضلاع جس کے زاویے قائمہ ہوتے ہیں، تو مستطیل کی تعریف میں ہے جس ضربۃ الاضلاع کے چاروں زاویے قائمہ ہو، جس ضربۃ الاضلاع کے چاروں زاویے قائمہ ہوں، اسے مستطیل یا قائمۃ الزاویہ ضربۃ الاضلاع کہتے ہیں۔ تو یہ اس کی تعریف ہوئی۔ تعریف کی وضاحت میں ہم کیا لکھیں گے کہ ضربۃ الاضلاع ABCD میں زاویہ A برابر زاویہ B برابر زاویہ C برابر زاویہ D برابر 90 درجے، چاروں زاویوں کی پیمائش برابر ہوتی ہے اور وہ 90 درجے ہوتی ہے۔ دوسرا کہ اس کی جو تعریف خصوصیت ہے، تو مستطیل جو ہے ایک متوازی الاضلاع ہے، مستطیل متوازی الاضلاع کی قسم ہے، اس لیے یہ جو تین خصوصیت ہے متوازی الاضلاع کی، یہ اس میں رہے گی، یعنی اس کے مقابل کے ضلع متماثل ہوں گے، اس کے مقابل کے زاویے متماثل ہوں گے، اس کے وتر ایک دوسرے کی تنصیب کریں گے، اور اس میں ایک چوتھی خصوصیت ہوتی ہے کہ مستطیل کے وتر متماثل بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم کیا لکھیں گے کہ ضربۃ الاضلاع ABCD میں زاویہ A برابر زاویہ B برابر زاویہ C برابر زاویہ D برابر 90 درجے۔ ضربۃ الاضلاع ABCD میں چاروں زاویے کی پیمائش 90 درجے ہوتی ہے، اس لیے ضربۃ الاضلاع ABCD ایک مستطیل ہے۔ اس کی خصوصیت میں کیا ہے؟ پہلی خصوصیت جو ہے مستطیل کے مقابل کے ضلع متماثل ہوتے ہیں، دوسری خصوصیت مستطیل کے مقابل کے زاویے متماثل ہوتے ہیں، تیسری خصوصیت مستطیل کے وتر ایک دوسرے کی تنصیب کرتے ہیں، اور چوتھی خصوصیت اس میں ایک اور ہے کہ مستطیل کے وتر متماثل ہوتے ہیں۔ اس کو ہم کیسے لکھیں گے؟ وتر AC
मुतमासिल है वित्र BD के। मुरब्बा, मुरब्बा जो मुतवाज़िल अज़ला की दूसरी किस्म है। पहली किस्म है मुस्ततील, दूसरी किस्म है मुरब्बा। मुरब्बे की जैसे यहाँ पे शक्ल नज़र आ रही है आपको कि देखिए इसके चारों ज़ाविये कायमा हैं और इसके चारों ज़िले मुतमासिल है। तो मुरब्बे की तारीफ ही है कि ऐसा ज़ुअरबतुल अज़ला जिसके चारों ज़ाविये कायमा हों और चारों ज़िले मुतमासिल हों, मुरब्बा कहलाता है। तो इसकी वजाहत में हम क्या देंगे? ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD में ज़ाविया A बराबर ज़ाविया B बराबर ज़ाविया C बराबर ज़ाविया D बराबर 90 दर्जे और ज़िला AB मुतमासिल है, ज़िला BC मुतमासिल है, ज़िला CD मुतमासिल है, ज़िला DA। इसलिए ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD एक मुरब्बा है। अब इसकी खुसूसियत में क्या आएगा? पहली खुसूसियत मुतवाज़िल अज़ला की, इसके मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। तो इसमें भी 3 खुसूसियत वही आएगी। मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं, मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, मुकाबिल के वित्र एक दूसरे की तनसीब करते हैं। इसकी चौथी खुसूसियत है वित्र मुतमासिल होते हैं। वित्र मुतमासिल होते हैं, ये मुस्ततील की भी खुसूसियत है, यानी वित्र AC मुतमासिल है वित्र BD के। और इसमें 5वीं खुसूसियत है वित्र उमूदी नासिफ होते हैं। तनसीफ तो करते हैं, लेकिन तनसीफ करते करते 90 दर्जे का ज़ाविया भी बनाते हैं। ये यहाँ पर ये जो ज़ाविया बनता है ये 90 दर्जे का बनता है। चारों ज़ाविये यहाँ पर 90 दर्जे के होते हैं। तो यहाँ पर ये DE AC पर उमूद होता है, BE AC पर उमूद होता है, AE BD पर उमूद होता है, CE BD पर उमूद होता है। तो वित्र उमूदी नासिफ होते हैं, इसका मतलब होता है कि ये जो ज़ाविया E पर है, मेजरमेंट ऑफ एंगल E जो है, ये होता है 90 दर्जे का। उसके बाद चौथे किस्म है मुअय्यन। मुअय्यन की ख़ास बात है कि इसके चारों ज़िले मुतमासिल होते हैं। ऐसा ज़ुअरबतुल अज़ला जिसके चारों ज़िले मुतमासिल हों, मुअय्यन कहलाता है। चारों ज़िले मुतमासिल किसमें हैं? मुरब्बा में और मुअय्यन में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD में ज़िला AB मुतमासिल है, ज़िला BC मुतमासिल है, ज़िला CD मुतमासिल है, ज़िला AD। इसलिए ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD एक मुअय्यन है। इसमें ये भी मुतवाज़िल अज़ला है, इसलिए इसमें भी पहली खुसूसियत ज़ुअरबतुल अज़ला मुअय्यन के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं, मुअय्यन के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, मुअय्यन के वित्र एक दूसरे की तनसीब करते हैं। और चौथी खुसूसियत है मुअय्यन के वित्र उमूदी नासिफ होते हैं, यानी जो मेजरमेंट ऑफ एंगल E जो रहेगा वो रहेगा 90 दर्जे का। ज़ू ज़नका,
ज़ुअरज़न का ये मुतवाज़िउल अज़ला की दूसरी ज़ुअरबतुल अज़ला की दूसरी किस्म है। पहली किस्म है मुतवाज़िउल अज़ला, दूसरी किस्म है ज़ुज़न का। ऐसा ज़ुअरबतुल अज़ला जिसके मुकाबिल की सिर्फ एक जोड़ी मुतवाज़ी हो। ये तारीफ है, ज़ू ज़नका कहलाता है। सिर्फ एक जोड़ी रहेगी, दो जोड़ी रहेगी तो वो मुतवाज़िल अज़ला हो जाएगा। तो यहाँ पर है ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD में, ये देखिए मुतवाज़ी कौन सी नज़र आ रही है आपको, AD और BC। ज़िला AD मुतवाज़ी है, ज़िला AB मुतवाज़ी है, AD ही तो है, ज़िला AD मुतवाज़ी है ज़िला BC के। इसको मैं फिर से लिख दे रही हूँ, ज़िला AD मुतवाज़ी है ज़िला BC के, इसलिए ज़ुअरबतुल अज़ला ABCD एक ज़ुज़न का है। तो क्या देखे हमने, ज़ुअरबतुल अज़ला ज़ुअरबतुल अज़ला की दो किस्में हैं। मुतवाज़िउल अज़ला, ज़ुज़न का। मुतवाज़िउल अज़ला की तीन किस्में। पहली है मुस्ततील, मुरब्बा, मुअय्यन। इसलिए मुतवाज़िल अज़ला की जो पहली, दूसरी, तीसरी खुसूसियत है वो ये तीनों में रहेगी। उसके अलावा चौथी खुसूसियत मुस्ततील के वित्र मुतमासिल होते हैं, चौथी खुसूसियत मुअय्यन के वित्र उमूदी नासिब होते हैं। और ये दोनों की जो चौथी खुसूसियत है ये दोनों इसमें मुरब्बे में शामिल है। तो मुरब्बा जो है उसमें मुअय्यन की भी खासियत होती है और मुस्ततील की भी खासियत होती है। आपके PDF की पेज नंबर 77 पर यह मश्क है। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल सवालों के लिए दिए हुए कसीर मुतबादिल के जवाब में से दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए। नंबर 1, जिस ज़ुअरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़िलों की सिर्फ एक जोड़ी मुतवाज़ी हो उस ज़ुअरबतुल अज़ला को खाली जगह कहते हैं। मुतवाज़िल अज़ला, मुस्ततील, मुअय्यन, ज़ुज़न का क्या कहते हैं वो यहाँ लिखना है। दूसरा है, खाली जगह ज़ुअरबतुल अज़ला के वित्र मुतमासिल होते हैं और एक दूसरे के उमूदी नासिब होते हैं। खुसूसियत में से आप खुसूसियत याद कर लीजिए, इंशाल्लाह सारे सवाल आसान हैं आपके लिए। सवाल नंबर 2, मेरे तमाम ज़ाविया कायमा है, मैं कौन हूँ। अब देखिए तमाम ज़ाविया कायमा जो है वो मुरब्बा के भी है और मुस्ततील के भी है, तो आप दोनों नाम लिख सकते हैं। मेरे तमाम अज़ला की लंबाई मसावी है, मैं कौन हूँ। मेरे तमाम ज़ाविया मसावी हैं और तमाम अज़ला मुतमासिल है, मैं कौन हूँ। मेरे वित्र मुतमासिल लेकिन एक दूसरे को उम्मीदी तौर पर क़िता नहीं करते, मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर आपको ज़ुअरबतुल अज़ला की किस्मों में से नाम लिखना है। सवाल नंबर 3 है, ज़ुअरबतुल अज़ला PQRA से एक मुतवाज़िल अज़ला है तो ज़ैल के खाली चौकोन मुकम्मल कीजिए। मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। मुकाबिल के ज़िले मुतवाज़ी भी होते हैं, मुतमासिल भी होते हैं, ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। अब ये जो है दोनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है मुतवाज़िल अज़ला के। तो यहाँ पर देखिए P और S है, P और S है, इसका मतलब ये मुत्तसिला है। मुत्तसिला यानी आजू बाजू के। तो आजू बाजू के दोनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ मुतवाज़िल अज़ला के मुत्तसिला ज़िले ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं।
اب کتنے درجہ لکھنا ہے وہ سمجھ لیجیے آپ. سوال نمبر 4 ہے 6 سم چوڑائی والے مستطیل کا وطر 10 سم ہے تو اس مستطیل کی لمبائی اور احاطہ معلوم کیجیے. یہاں پر آپ کو فیثاغورس کا مسئلہ استعمال کرنا ہے. مستطیل کی لمبائی معلوم کرنا ہے، لمبائی اور چوڑائی معلوم ہو گئی تو مستطیل کا احاطہ معلوم کرنا ہے. سوالات حل کرنے کی کوشش کیجیے. کچھ اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ اپنے میتھس ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں.